Hello everyone, this is Dr. Nadi here on your desk for your service. Today in this neurology video, we'll be uncovering our first rule, that is the golden rule of neuroanatomy. You guys are seeing this, the 8 golden rules of neuroanatomy. Now what are they and why are they known as golden rules? Because throughout the years of my experience in the neuroanatomy thing, whatever I've studied, I've tried कि मैं सारे जो basic rules हैं before like going into more depth कि how many nuclei in the thalamus और ये सारी depth में जाने से पहले hypothalamus, limbic system, amygdala, cerebral cortex, spinal cord, nerves, eye, cranial nerves, इन सबको डिटेल में समझने से पहले it's very very important to go through the 8 golden rules of the neuroanatomy, guys, because these are actually the rules, the basic secret rules before understanding the ABC. They are actually the ABC of neuroanatomy. तो जब तक आपने ABC नहीं समझी, it's very difficult for all of you guys. It's gonna be difficult to excel the neuroanatomy because neuroanatomy जो है वो typically बहुत tough होता है if you guys are not serious about it. So hello everyone again, and we are now uncovering our first basic rule here, and you have read the topic obviously in the of course the thumbnail, and that is ta-da, voila, divisions of nervous system. Now basically the first golden rule is 8 the divisions of the nervous system. So before going further into the video, please do subscribe to my YouTube channel, like, comment, share this video to your friends, and yes, the most least thing, do not forget to press that bell icon button. बहुत प्यारा button है यार, दबा देना उसको. Okay guys, so moving towards it now. The divisions of the nervous system के लिए हमने करना है कि okay, so you guys need to understand the divisions of the nervous system. So nervous system क्या होता है? Anything which makes us nervous, है ना? जब भी हम nervous system पढ़ते हैं तो हम nervous हो जाते हैं. टाड़ा, बहुत बड़ा जोक था. Leave it. So nervous system basically is divided into 2 parts. Basically it have 2 components. The one is, sorry for the delay. The one is the central nervous system. Central nervous system consists of, now okay, understand this is a tummy. We have a tummy here. Guys, look at this. I need a, this is a tummy, right? And have few hair. अच्छा, tummy का जो brain है, that means this thing, right? And जो उसका central चीज़ है, which is the spinal cord, yes, they are the part of your central nervous system. So we have 2 parts in the central nervous system, which is our brain and the spinal cord. Very important to say, what is the central nervous system? Now imagine this as this. This is a brain, right? I'm drawing a brain for you guys. Please ignore my ड्राइंग. ये जो बेसिकली मैं लेटरल व्यू दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, या आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स समथिंग आ गया, ये मिड ब्रेन का पोर्शन आ गया, एंड आई एम गोइंग दिस लॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड. ये प्लीज़ इग्नोर द डायग्राम. अच्छा जी, ये जो हमारे पास ब्रेन होगा एंड ये स्पाइनल कॉर्ड होगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्चुअली मतलब होता है द पार्ट विच एक्चुअली रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी प्लस द इन्वायरमेंट. So this is a part which receives the information, plus this is a part which after receiving makes decision what to do about the sensory information that they're receiving. Second part, this is a part which do orders, and you are a slave guys. आप लोग वो हर चीज़ मानते हो जो ये decision लेता है. So this is a part which actually receives information, it interprets information, it have the decision making power, it have the emotional content, and ये वो भी information receive करता है जो आपको भी पता नहीं होती. That is basically आपका heart rate क्या है, आपका जो है for example pupil dilate हो रहा है, somebody like crush आपके पास आगे से आ गया, तो you do not know कि आपका pupil dilate हो जाएगा, but हो जाता है क्योंकि आप स्लेव हैं इसके. एंड आफ्टर दैट फॉर एग्जाम्पल किसी के हाथ में बहुत गर्म टेम्परेचर रखा हुआ है, या स्त्री को लाइक आयरन को हाथ लगा लिया उसने, तो आफ्टर दैट हॉट टेम्परेचर या स्टोव को हाथ लगा दिया है, तो द सेंसरी इन्फॉर्मेशन गोज टू दिस पार्ट. This recognizes कि okay, now this is a bad thing happening to the body, and this gives order that please remove the hand. So basically
ये आपके पास रिसीव भी करता है इन्फॉर्मेशन, उसे इंटरप्रेट भी करता है, कुछ जो फॉर एग्जांपल मेमोरी सेविंग के लिए होती हैं वो सेव भी कर लेता है, और फिर अपने मोटर डिसीजंस भी लेता है। मोटर डिसीजंस में इसका रिमूविंग हैंड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल टॉमी आया है आपके पास, तो आप टॉमी को हैंड शेक करोगे, वो भी आपके पास इसका ही डिसीजन होगा। तो बेसिकली इट गिव्स ऑर्डर, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड इट हैव अ काइंड ऑफ अ इंटरप्रिटेशन सिस्टम कि ये आपके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, कौन सी नहीं करनी। बेस्ट पार्ट यू गाइज नीड टू नो इज दैट अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी लाइक हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है जब हम क्रश को देखते हैं, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं होती कि हमारा हार्ट रेट बढ़ चुका है, या हमारे जो है वो आपने खाना खाया और आफ्टर ईटिंग फूड आपकी जो सीक्रेशंस हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बढ़ जाएंगी। अब ब्रेन तो नहीं कहेगा ना नॉक नॉक मैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सीक्रेशन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सेटल हो जाइए। आपको पता नहीं होगा कि आपकी पेनक्रियाटिक जूसेस निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं, ये सारा काम यही करते हैं। तो ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विच इज़ कमिंग लाइक ऑल दोज सेंसरी इन्फॉर्मेशन विच इज़ कमिंग टू विच एक्चुअली कम्स टू दिस पार्ट, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जब सिर्फ इस पार्ट पर होती है, दिस पार्ट स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट पर, दैट इज़ योर अनकॉन्शियसनेस लेवल। वो चीज़ हमेशा अनकॉन्शियस रहती है, आपको पता नहीं चलती। बट इफ़ दैट इन्फॉर्मेशन गोज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी ब्रीथिंग जो है वो शैलो है, ठीक है, या डीप ब्रीथिंग है, अभी तक आपको एहसास नहीं था कि आपकी ब्रीथिंग जो है वो शैलो है या तो डीप है, तो तब तक जो इन्फॉर्मेशन ब्रीथिंग की जा रही थी, स्टेटस चेक हो रहा था वाइटल साइंस का, वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर हो रहा था, तो दैट वाज रिगार्डेड एज अनकॉन्शियस लेवल पर हो रहा है। बट अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया, तो नाउ यू विल बी लाइक कि अब आपका ध्यान वहाँ पर होगा कि हाँ डीप हो रही है, शैलो हो रही है, तो नाउ दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन इज रीचिंग टू द कॉर्टेक्स, एंड द कॉर्टेक्स, सी से कॉर्टेक्स आता है, सी से सेरेब्रल आता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रही है, और सी से कॉन्शियस आता है। तो ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विच इज मेकिंग इट्स पाथ टू इट टुवर्ड्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन थिंग, यू आर गाइस आर डेफिनेटली गोना रिमेंबर इट। अच्छा, मेमोरी का पार्ट भी आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही आता है। Okay, so enough said about this. The second part is basically our peripheral nervous system, which is equally important as this master, because peripheral nervous system में क्या आता है, peripheral nervous system में आता है all those things which take the sensory information to the brain or the spinal cord, and all those which take the information away from the central nervous system, right? So basically आपके पास that means this is a part which is our sensory part, and this is part which is our motor part. So it have two components. The one is a sensory which actually takes the information towards the central nervous system, and the one is a motor which takes information from the central nervous system to the body, ठीक है? Okay, so these are actually the nerves. Peripheral nervous system में nerves क्या होती हैं, थोड़ा सा I'll tell you detail about the nerves in the grey matter white matter की details में. Okay, so basically peripheral nervous system now consists of, since I've destroyed my web diagram, okay, I have this thing which is our sensory and motor, right? So these have two components, the sensory and the motor. अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे अच्छे से सेंसरी। सेंसरी में क्या क्या चीज़ें स्पेशल होती हैं और हम इसे सेंसरी क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन कैन बी बोथ टाइप्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू काइंड्स। टू मेक दिस मोर डिफिकल्ट हमने इसे डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में, जर्नल सेंसेशंस, सो सॉरी, and special sensations. Okay, so the general sensations and the special senses में क्या फ़र्क है, gonna tell you now. Okay, special senses आपके पास वो होती हैं जो आपके पास स्पेशल जगहों से आ रही हैं. All those which are coming from मतलब localized signals coming from a special place. For example, you guys are endowed with vision, right? Vision आपके पास जो eye का आ रहा है, that is coming from eyes,
You guys have olfaction, which is smell from the nose. Taste from tongue. Hearing from ears. अच्छा, ears जो है वो बैलेंस और इक्विलिब्रियम भी करते हैं. तो बैलेंस और इक्विलिब्रियम का स्टेटस भी इज अ सेंसेशन विच इज़ अ स्पेशल सेंसेशन, एंड बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड थिंग्स, राइट. जर्नलाइज्ड स्किन से नहीं आती. वो है जर्नल सेंसेशंस. जर्नल सेंसेशंस वो जर्नल कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो कहीं से भी उठ के आ जाते हैं. पैर, हाथ, मुंह, ज़बान नहीं, सॉरी, कहीं पे भी आपके पास, कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में यू गाइज एक्चुअली फील पेन. एक वर्थलेस चीज़ मानते हैं हम इसको, है ना. ओके, गिविंग माई एग्जाम्पल्स इन ग्रीन. ठीक है जी. यू गाइज हैव टच. अब ऐसा तो नहीं होता ना कि हाथ को टच करेंगे तो फील होगा, पैर पे टच फील नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं है. कहीं से भी जो उठ के आ जाते हैं उनको जनरल सेंसेशंस कहते हैं. वी हैव दिस टेम्परेचर थिंग्स. टेम्परेचर भी आपको कहीं भी बॉडी पे फील होता है. कभी फॉरहेड पे हाथ लगाते हैं, कभी हाथ पे हाथ लगाते हैं, राइट. नाउ अब जनरल सेंसेशंस आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बिकॉज न्यूरोएनाटमी इज ऑल अबाउट डिफिकल्टी. सो बेसिकली जनरल सेंसेशंस वो सेंसेशंस होती हैं जो कहीं से भी आ जाती हैं. Now there is a twist. One are somatic and the other is deep or visceral. I guess it's very evident from its name what we actually are trying to say. Somatic ko you can also call superficial. I hope this is clear to you guys. You guys can call it somatic. वो होती हैं आपके पास all those information which is coming from the skin part. That is the superficial part. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगैन इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाएगा कि ओके, लेट्स जस्ट गो फॉर द डीप बिकॉज बहुत ज़्यादा समझ में आएगा. डीप और विजुअल सेंसेशंस वो जो आपको फॉर एग्जांपल आपके जो है वो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है, डायरिया में जो आपकी ब्लोटिंग होती है, पेट में दर्द होता है, हल्का हल्का सा ऐसा लगता है कि आपका पेट जो है वो हल्का दुख रहा है, तो बेसिकली वील डिफाइन देम एज डल पेन बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम विजराज. विजराज से आ रही हैं वो चीज़, और दैट आर डीप, और वो हमेशा अनलोकलाइज्ड बहुत लार्ज एरिया को कवर करती हैं और बहुत डल चीज़ें होती हैं. लोकलाइज्ड पिंचिंग नहीं होती. ठीक है जी. डल पेन हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया, स्ट्रेच बिकॉज स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी होते हैं आपकी बॉडी में, राइट. डायरियल क्रैम्प्स वगैरह आपके पास आते हैं. और आई डोंट नो व्हाई देयर इज एन एग्जांपल लाइक, अच्छा देयर इज एन डिस्टेंशन, कोई भी ऑफकोर्स डिस्टेंशन होगा तो ठीक है. अच्छा जी. सिमिलरली सुपरफिशियल, ये बहुत ईजी हो गया हमारे लिए. सुपरफिशियल सोमैटिक क्या होता है? बेसिकली इट इज़ जो हमारे पास लोकलाइज स्किन से आ रही है, द सरफेस. फॉर एग्जाम्पल आई एम पिंचिंग माई सेल्फ, सो दिस इज़ अ ट्विस्ट जो मुझे लोकलाइज्ड फील होगी, एंड शार्प पेन होगा. लोकलाइज्ड एंड शार्प पेन. गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वट वेन एवर समथिंग इज सुपरफिशियल it is very localized, while if you are talking about deep and visceral it is very it is not localized, और ये बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है. आप स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि किस आपकी बॉडी के जियोग्राफिकल रीजन में कोई चीज़ हो रही है, राइट. सो सुपरफिशियल सोमैटिक में अगेन वी हैव पेन, वी हैव टेम्परेचर, एंड वी हैव सम न्यू मेंबर्स टू, एंड दोज मेंबर्स आर प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन. वाइब्रेशन हमें फील होती है जब मोबाइल आप हाथ में पकड़ते हो, या ठीक है ना, तो वो वाइब्रेशन फील होती है आपको. तो वो सोमैटिक और सुपरफिशियल की वजह से होती है. प्रोप्रियोसेप्शन क्या होती है? कैन एनीबडी टेल? हाउ कैन यू गाइस टेल? ना मैं लाइव थोड़ी आई हुई हूँ. अच्छा जी. प्रोप्रियोसेप्शन इज ऑल दो सेंसरी इंफॉर्मेशन विच आर कमिंग फ्रॉम, अच्छे से सुन लो बिकॉज इट्स वर्थ. ठीक है जी. प्रोप्रियोसेप्शन इज एक्चुअली ऑल दोज इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग फ्रॉम योर ligaments, your joints, your muscles, your skin की fascia, your muscles, your tendons and your ligament. even जो कैप्सूल भी साइनोवियल होता है, मतलब एक जॉइंट, सपोज ये जॉइंट है, ठीक है, इस जॉइंट से मैंने सपोज कोई भी, अच्छा ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. प्रोप्रियोसेप्शन की एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम लोग? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गाइज आर क्लोजिंग योर आइज, राइट,
यू डू नॉट नो, फिर भी एंड यू आर टेलिंग योर आईज, अच्छा आपने जो है वो अपनी आंखें बंद कर दी और यू आर टेकिंग योर फिंगर एंड आई एम टेलिंग यू कि आंखें बंद करके अपनी इस फिंगर की टिप को अपने नाक की टिप पर रखिए, ठीक है, टच द टिप ऑफ योर नोज आफ्टर क्लोजिंग योर आईज. हाउ डू यू नो दैट आपका नाक कहाँ पर है और आपका ये हाथ कहाँ पर है? आंखें तो हमने बंद कर दी है. बिकॉज नाउ दिस इज एक्चुअली शेयरिंग द स्टेटस विद योर ब्रेन that now it have to go and touch. तो इसकी जो पोजीशन है कि अभी हाथ उठा, अब ये जाएगा, नाक को हाथ लगाएगा, तो बेसिकली इट इज़ ऑल प्रोप्रियोसेप्शन, क्योंकि द स्टेटस ऑफ अ जॉइंट कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, वो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम इसे प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं. आई गेस आई एम डन विद दिस थिंग, ओनली दिस राइट. आई एम अब मोटर की बात करते हैं. एज यूजुअल मेरे पास जगह नहीं बची एंड एज यूजुअल आई suck at diagrams. Okay, let's just carry it, guys. Again I'm telling you, I'm going to tell you motor. So motor, right? So basically where were we were having our nervous system. We have our central nervous system, we have our peripheral nervous system, then we have our peripheral nervous system have our sensory part, then it have motor part, then it have sensory part के पास होते हैं general sensations and special sensations. General sensations have two other parts, somatic sensations and visual sensations. Motor now is a hero. अच्छा जी, अब मोटर क्या करेंगे? मोटर के हमारे पास होते हैं दो पार्ट्स again, which is basically very important for you guys to know. Our hero, acha ji, now it is basically divided into, motor is divided into two other parts basically, which is our somatic and the other is autonomic. Okay, मोटर वो चीज़ होती है जो रिस्पॉन्स होती है, the things which you are doing or your body is doing as a response of a stimuli, right? So basically मोटर में somatic क्या होती हैं? For example, all those voluntary things, ठीक है, all those voluntary things. For example, आपका friend आया है आपको greet करने के लिए and now your brain shows कि अपना हाथ उठाइए और उनके साथ हाथ शेक कीजिए, हैंड शेक कीजिए. So this is a voluntary movement, right? Because your hands are not moving like this and this, right? Your hands are properly coming and वो hand shake कर रहे हैं, right? So that is a voluntary movement and that is the thing which you know that you are actually going to shake your hand with a friend, right? So basically that is voluntary, which is a skeletal activity. ठीक है, skeletal muscle हमारे पास जो काम करती हैं वो होती हैं. For example, hand shaking आ गया. Now what is the autonomic thing? Autonomic thing is all those which is involuntary. For example, again वही बात आ जाएगी, the involuntary response, that is for example आपने खाना खाया, after eating food, now the digestive enzymes are not needing like are actually to be released in your stomach or in your intestine, right? अब जब आपने digestive system में पढ़ा होगा that basically your mobility of the stomach and the intestine increases, right? So what is that? When the food touches the wall of the stomach, जब वहाँ पर, तो the signals or the sensory information goes to the brain and the spinal cord, informs them कि now there's a food and now we have to shake it up. फिर brain आपके पास motor, that is autonomic involuntary system के साथ उनको message भेजता है कि now shake it up. So basically all those are smooth muscle activities which you do not aware and which you are not aware and which you do not know for sure. Now to make this a little more difficult, क्योंकि हमारी जान आसान बनाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता. It is now divided into two parts, right? The one part is sympathetic and the other part is parasympathetic. Now what is that? Okay, बताते हैं. Basically, sympathetic systems are also known as fight or flight conditions. Remember this condition when your crush comes in front of you. जब भी किसी को आप one example is when your crush comes, what happens? Just remember, your pupils dilate, right? Your heartbeat rate increases, right? You become more sweaty, right?
यू स्टार्टेड टू ब्लर, उस टाइम पर आपके पास जो है वो कुछ समझ नहीं आएगा, इट्स अ फाइट और फ्लाइट कंडीशन, और योर बॉडी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेशन स्लो हो जाएगी. सो दिस अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स विच हैपन्स इन द सिंपैथेटिक सिस्टम, ऑल दोज कंडीशंस जो कि आपका ब्रेन आपको प्रिपेयर करता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हेन अ डॉग इज कमिंग आफ्टर यू. जब आपके पीछे डॉग भागता है, ठीक है, एंड इट्स बार्किंग एंड नाउ यू आर रनिंग इन अ गार्डन अपनी जान बचाने के लिए, तो उस टाइम पर जो कंडीशंस होंगे अपने आप को बचाने के लिए बॉडी करेगी, आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा टू योर मसल्स ताकि आपके पास रनिंग ईजीली हो सके, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका डाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, सो दैट आपका जो ब्लड फ्लो टू द स्किन है वो कम हो जाएगा. क्यों? ताकि वहाँ ब्लड हम ज़ाया ना करें, हम अपना ब्लड जो है वो वाइटल ऑर्गन्स को दें, ठीक है. सो ऑल दोज थिंग्स हैपन, आपकी जो ब्रेथ्स है, रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. सो दिस आर नोन एज फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन. वेल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक दैट इज़ रिलैक्स. And you guys also need to relax because अभी ख़त्म होने वाला है, and this is the last thing I was teaching you guys. It's a normal state, normal heartbeat rate, normal respiration rate, digestion को बढ़ा देना, blood flow to the skin अच्छा कर देना, everything relaxations के साथ, right guys? So I guess I'm pretty done with this and we are done with the first rule of the neuroanatomy, which is the divisions of the nervous system. Let's see. Okay guys, so basically this is the thing, that visions and then this thing. So guys, if you like my video, don't forget to subscribe it. Thank you so much. Bye.